Hello students. Today we are going to study the poem Childhood from our book Hornbill. Childhood is written by Marcus Nathan. In this poem, the poet thinks over his lost childhood. He wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what he seemed it to be. He recalls when his thoughts changed and he realized the hypocrisy of the people around him. He finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place and is hidden in the face of an innocent infant. In the above lines, the poet wonders about when his childhood came to an end. He asked himself, was it the day he was no longer 11 years old? Was it the day when he realized that hell and heaven existed and yet could not be found in geography or on the map? He realized that they are imaginary places that actually do not exist in this world. ना पोएट यहाँ कह रहा है कि उसने अपना चाइल्डहुड कब खोया, जब वो 11 ईयर्स का हो गया या तब जब उसको ये रियलाइज़ हो गया कि ये हेल और हेवन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जियोग्राफी की बुक में कहीं बताया ही नहीं गया है, इसका कोई मैप नहीं है। उसको ये समझ में आता है कि हेल और हेवन क्या है, एक इमेजिनरी प्लेस है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या वो तब जाके अपना चाइल्डहुड खो देता है? Now in the second stanza, the poet again repeats the same question about when did his childhood go. He wonders about the day when he started seeing the world with a new perception that adults are hypocrites and are not how they seem to be. The adults who talked of love and preached of love and yet never behaved so lovingly. They are double faced in reality. Was that the day when his childhood go? Now ये सेकेंड स्टेंजा में वो कहता है कि क्या उसका चाइल्डहुड तब चला गया जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो बड़े लोग होते हैं वो हिपोक्रेटिक्स होते हैं, वो झूठ बोलते हैं, लोगों को प्यार के बारे में बताते हैं लेकिन खुद कभी वो प्यार से बिहेव नहीं करते हैं। उनके डबल फेसेस होते हैं, एक वो जो दूसरों को दिखाते हैं और एक जो खुद अंदर से होते हैं। तो क्या वो दिन था जब उसका चाइल्डहुड उससे अलग हो गया? Now the third stanza, the poet deliberates on the same question about when he lost his childhood. He asked himself about possibilities. He wonders about the day he realized that his mind was his own and could use it the way he wants. When he realized that he could produce his own thoughts which were not bound by anyone. When he sensed his own individuality and a separate personality, was that the day he lost his childhood. नाउ अब जो पोएट है वो कहता है कि उसका चाइल्डहुड उस दिन चला गया जब वो ये रियलाइज़ कर लेता है कि उसका जो थॉट्स है वो खुद का है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, वो खुद अपनी सोच रख सकता है। ही कैन हैव ए सेपरेट थॉट, जैसा लोगों ने बताया उससे अलग भी उसका थॉट हो सकता है। वो एक खुद में इंडिविजुअल है और सेपरेट पर्सनैलिटी है, वो एक दूसरों से अलग है, खुद एक पर्सन है। सो एट दैट टाइम उसका चाइल्डहुड चला गया। इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट remorses about his lost childhood. He concludes that his childhood had gone to some forgotten place which will never come back. He cherished his innocence which vanished now
and could be only seen in a baby's face. He only was sweet, has sweet memories of his childhood which would soon fade away. He also conveyed a message that the innocence of childhood stays till the time one is an infant, and that is all he knows. नाउ द लास्ट स्टेंज हम पोइट कहते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है वो कहीं चला गया है और वो फॉरगटन प्लेस पे चला गया है जो वापस अब नहीं आने वाला है, और वो अपने जो बचपन में जो इनोसेंस था जो अब चला गया है वो उसको कहाँ दिखता है, अगर न्यू बॉर्न बेबी के अंदर वो इनोसेंस अब उसको वो सेम इनोसेंस उसको दिखता है। वो अपने इनोसेंस और चाइल्डहुड को याद करता है, और ये जल्दी ही कुछ दिनों में ये जो मेमोरीज हैं ये भी क्या हो जाएंगी, फेड अवे हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और वो कहता है कि जो इनोसेंस होता है वो सिर्फ बच्चों में होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो इनोसेंस हमसे क्या होता है, दूर हो जाता है, उसको सिर्फ इतना ही मालूम है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस poem. We'll now look at some literary devices. First one is rationalizing. Rationalism जो लाइन जो पोएट कहता है कि उसने अपना जो बचपन है वो 11 इयर्स का जब हुआ तो वो उसको खो देता है, और दूसरी चीज़ जो हेल और हेवन की बात हुई है वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो जियोग्राफी की बुक में कहीं उसके बारे में कोई मैप नहीं है। सो यहाँ पे ये रैशनलिज्म का यूज़ किया गया है। रेफरेन है पूरी पोयम में, ये जो लाइन है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो वाज दैट द डे, ये बार बार जो रिपीट हो रहा है इसको हम रेफरेन बोलते हैं। एंटीथेसिस का भी यूज़ किया गया है, हेल एंड हेवन, जो दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ होते हैं कॉन्ट्रैरी टू ईच अदर। इन्वर्जन है अपोजिट वे में, मतलब एक जो सेंटेंस का जो सीक्वेंस होता है उसके अपोजिट में जब लिखा जाता है तो उसको इन्वर्जन कहा जाता है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज, ये जो लाइन है रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है ना। एलिट्रेशन दो तीन जगह है, द टाइम, माई माइंड, विच एवर वे, थॉट्स, दैट, ये एलिट्रेशन है। सो दीज आर फ्यू लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पोएम. Now here we come to the end of this poem. Thank you.